Today's topic is Maslow hierarchy of needs theory. Hmm. In last class, I had told you about types of motivation, types of needs, motivation, nature of motivation, importance of motivation. Is it clear? ये जो मैंने बताए थे लास्ट क्लास में आपको ये पॉइंट्स इसको डिस्क्राइब किया था, सभी को क्लियर है? वंस अगेन मैं इसको रिपीट करूं और उसके बाद में हायरार्की नीड थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. Concept of motivation. What is the motivation? Motivation is a willingness to exert high level of effort towards organizational goals, conditioned by effort, ability to satisfy some individual needs. Nature of motivation. We can say motivation is a psychological force within an individual that sets him to that sets him in motion for achievement of certain goals or satisfaction of certain needs. Motivation is a psychological force within an individual that sets him in motion for achievement of certain goals or satisfaction of certain needs. Now, nature of motivation. In nature of motivation, some points. Uh, uh, or satisfaction of certain needs. क्योंकि सेटिस्फैक्शन आप जरूर लिखना, सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स, बिकॉज आफ्टर मोटिवेशन जो रिजल्ट है मोटिवेशन का वो सेटिस्फैक्शन ही है, तो आपको सेटिस्फैक्शन इंक्लूड जरूर करना है. ओके. हाँ. मोटिवेशन एक मोटिवेशन एज अ टास्क, मोटिवेशन इज एक्ट. एंड मोटिव. हाँ. हाँ. एंड मोटिव इज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है. हाँ. यस. एंड मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक एक्ट है जो मोटिवेशन, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है. एंड नाउ नेचर. हाँ. आप ना अपने अपने वर्ड्स में इसको आप लिख सकते हो, आराम से आप बना सकते हो, क्योंकि मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. आप, हम्म, काफी कुछ, काफी कुछ लिख सकते हो. हाँ. एंड दीज पॉइंट्स जो है इनको भी अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो, बस पॉइंट्स की, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. हाँ. यस. नाउ नेचर ऑफ मोटिवेशन. In nature of motivation, these are some points. Based on motives, motivation is a psychological phenomenon. हाँ. इसका ये बेस किस पे, मोटिव से बेस्ड होता है. मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल motives. Motives in the sense objective, target, goal, which are internal to the individual. Motives provide activating thirst toward reaching a goal that comes from the feelings
when individual lack something. And motivation is a psychological phenomenon. The process of motivation is mainly concerned with needs, desires, expectation, confidence, satisfaction, that are psychological phenomena. The psychological make up every individual is different from others. Therefore, it is very difficult to find out what can motivate the person toward desired goals. And next one is motivation cannot be easily observed. Everyone know that motivation is a act. We can't be easily observed. We can't be easily observed. It is not actually possible to make direct observation of motivation. Can be observed interactions which constitute their behavior in terms of underlying motives and satisfaction. मोटिवेशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी इजिली ऑब्जर्व. वी कैन only and only feel through the feel with satisfaction. हम satisfaction के थ्रू, satisfaction के साथ में हम उसको फील कर सकते हैं. ओके. And goal oriented process, motives are directly toward goals. Motivation has great deal of influence on the human behavior. Goal directed behavior is a reason due to which that behavior take place. And next, motivation is dynamic and situational. Motivation जो होते हैं वो according to situation change होते रहते हैं, same नहीं होते हैं. ठीक है. नीड्स एंड वांट बिकॉज डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होती हैं. एंड मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन. मोटिवेशन का जो रिजल्ट होता है, अवार्ड होता है, वो क्या होता है? सेटिस्फैक्शन या पनिशमेंट. दो चीजें होती हैं. या तो मोटिवेशन सक्सेस हुआ तो वो अवार्ड देके जाता है, मतलब आपको सक्सेस अगर सक्सेस हुआ, मोटिवेशन अगर राइट वे में चला गया तो आपको रिजल्ट में अवार्ड मिलेगा. अवार्ड इन द सेंस पॉजिटिव रिजल्ट्स. एंड अगर सेटिस्फैक्शन पॉजिटिव होगा. एंड अगर मोटिवेट नहीं हुए नेगेटिवली, देन पनिशमेंट में मैंने आपको बताया था इन लास्ट क्लास कि आपका डिमोशन है, आपका डिमोशन और आपका जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. एंड अगर आप बच्चे हो और आपको बोला गया है कि आपको अगर आप 98% मार्क्स लाओगे तो हम आपको बाइक दिलाएंगे, और नहीं लाओगे तो हम पढ़ाई बंद करा के घर में बैठा देंगे. तो सेकंड जो है मोटिवेशन का सेकंड एस्पेक्ट क्या है? पढ़ाई बंद करा देंगे, घर में बैठो आराम से. गर्ल्स को घर के काम करो, बॉयज को पापा के साथ काम करो. ठीक. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है. और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको बाइक दिला देंगे, फोन दिला देंगे, आगे आपको अच्छी पढ़ाई कराएंगे, आपकी सारी डिमांड्स आपकी टाइम टू टाइम पूरी होती रहेंगी. तो नेक्स्ट है पर्सन इज मोटिवेटेड इन टोटलिटी. The individual and organization have various goals and their needs are interrelated. एक के बाद एक नीड जो है वो कहीं ना कहीं इंटररिलेटेड होती है. एक फुलफिल होती है, दूसरी जनरेट होती है. तो ये क्या है कि वो कभी कंप्लीट नहीं होती है. मोटिवेशन कभी पर्सन टोटली मोटिवेट नहीं होता है. ठीक है. उसको टाइम टू टाइम उसकी नीड्स एंड वांट्स चेंज होती रहती हैं. एंड फीलिंग्स एंड नीड्स आर कंटिन्यूअस प्रोसेस. फीलिंग्स एंड नीड्स जो हैं उसी कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस में रहती हैं. तो मोटिवेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है. इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. इन इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन,
There are some points: high performance level, low employee turnover and absenteeism, acceptability to change, and better organizational image, better industrial relations. In this high performance high performance level मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कौन बताएगा? आप सब थे? हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, यस, हाई परफॉर्मेंस। ओके, एंड लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। अगर आप मोटिवेट होते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और नहीं होते हो तो आपको एब्सेंटिज्म की कंडीशन में आपको जो जैसे मैंने बताया पनिशमेंट मिलता है, आपको फायर कर दिया जाता है जॉब से, एंड हाँ, आपका डिमोशन हो जाता है। एंड अगर आप मोटिवेट हो जाते हो इन पॉजिटिव वे तो आपको वो इंसेंटिव, आपको सैलरी बेसिस बढ़ा के दिया जाता है, एंड इंक्रीमेंट, जॉब में इंक्रीमेंट लग जाता है, एंड प्रमोशन, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपको अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। देन द कंडीशन person person got person get satisfaction, okay, and acceptability to change. हाँ, acceptability to change in the sense technology change होती है time to time, way of the working and technology and environment accordingly person को changes accept कर लेना होता है, और इजीली जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो जो मोटिवेट हो जाते हैं उनकी प्रोग्रेस होती है, वो उनका प्रमोशन है, उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। इन द सेंस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो स्मूथिंग वे में वर्क करते हैं, वर्क शेड्यूल को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। अदरवाइज उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज स्टार्टिंग में उनको डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, और वो चेंजेस को थोड़ा मुश्किल होता है अडॉप्ट करना, बट वो चेंजेस को अडॉप्ट करना आफ्टर अडॉप्टिंग सम चेंजेस तो दे कैन गेट रिवॉर्ड्स, मोर एंड मोर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स में क्या होता है कि वो अच्छे से जो मैनुअल वर्क और कंप्यूटर के वर्क में डिफरेंस तो बहुत है। मैनुअली जो वर्क होता है उसमें बहुत हैट्रिक होता है, उसमें लगता है कि मैनुअली वर्क ठीक है, जिसको नहीं आता थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर में, बट मैनुअली ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड कंप्यूटर में आपने सारी फाइल सेव कर रखी, सारा डेटा सेव कर रखा है, जब भी जिसने मांगा खट से निकाल के दे दिया। और जो मैनुअल होता है, मैनुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप ये रजिस्टर देख रहे हैं, वो इनवॉइस देख रहे हैं, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, बोनस है, सैलरी है, सारी चीजें, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज मेंटेन बनी रहे कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना करते हैं, बहुत अच्छा एम्प्लॉयज को बहुत कंसर्न करते हैं बहुत ज्यादा, और जिससे कि जॉब में कोई जो भी उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी जो एम्प्लॉयज हैं हायर करने में प्रॉब्लम ना हो गुडविल की वजह से, एंड पर्सन भी वहाँ इंटरेस्ट ले जॉब करने के लिए, मतलब एक रेपुटेशन मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांड मेंटेन करना। बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस किसके साथ? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर के साथ में बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना। एंड नाउ टाइप्स ऑफ नीड्स, इन टाइप्स ऑफ नीड्स प्राइमरी नीड्स, secondary needs and gender needs. In primary needs, basic needs, food, sleep, air, temperature, water, these kind of. And secondary needs, these are also called learned or derived needs.
learned or derived needs. Emergence of their needs, emergence of these needs depend on learning. And next जनरल नीड्स. इन जनरल नीड्स जो पर्सन की सेल्फ क्रिएट की हुई होती है, साइकोलॉजिकल ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल नहीं होती है, बट सर्टेन नीड्स लाइक कॉम्पिटेंस, क्यूरियोसिटी, सेल्फ सेल्फ जनरेट की हुई, ये ना ही सोसाइटी एनवायरनमेंट से क्रिएट की जाती है और ना ही ये एसेंशियल नीड्स होती हैं, उनसे हटके पर्सन सेल्फ नीड्स ये जनरेट करता है. हाँ, तो ये आती है जनरल नीड्स में. एंड नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स इंक्लूड द वेजेस, सैलरीज, पे, इंक्रीमेंट, ये सब इंक्रीज हो जाता है. नॉन मॉनेटरी में इंसेंटिव्स कंप्राइज इंक्रीमेंट इन स्टेटस, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क, इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड नेगेटिव मोटिवेशन में पनिशमेंट, एम्प्लॉयज डोंट परफॉर्म वेल, fear of suspension, demotion, wage cut also can motivate employees to do the work efficiently and effectively. And in the private sector, manager must be both positive and negative motivational technique depending upon the situation. We should employ negative motivation to eliminate undesirable employee behavior and activities. Now, Maslow hierarchy needs theory. In Maslow hierarchy needs theory, human needs tend to be diverse in content as well as in length. Dr. Abraham Maslow has formulated a widely accepted theory of human motivation based on hierarchy of human needs, which is universally accepted. हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप, रैंक इन ऑर्डर. हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का मतलब रैंक इन ऑर्डर. ठीक है, तो मैस्लो जी ने रैंक इन ऑर्डर पे फोकस किया है कि जो ह्यूमन नीड्स के बारे में, जो ह्यूमन नीड्स रैंक इन ऑर्डर में होती हैं. ठीक है, अब वो कैसे होती है वो सारी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. He has stated 5 levels of human needs, which can in order of importance from lower level. Lower level होते हैं psychological needs. Lower level से beginning start जो मैस्लो जी ने start किया, simply beginning, and जहाँ से down to earth, down to earth word upward and कहते ना कि धरती से आसमान तक को उन्होंने अपने नीड्स की थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. इट मींस ले स्टैंडर्ड को टच करके हायर लेवल को उन्होंने एक्सप्लेन किया है. इन फर्स्ट लेवल ले, जहां पर रिक्वायरमेंट फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की होती है, वहां से उन्होंने अपनी थ्योरी को स्टार्ट किया है. एंड वहां उस कैसे कैसे स्टेप वाइज नीड्स कंप्लीट होती हैं, आफ्टर देन सेकंड नीड्स जनरेट होती है, एंड सेकंड कंप्लीट होती है, देन थर्ड नीड जनरेट होती है, बेसिक नीड्स. एंड अकॉर्डिंगली मैस्लो जी
This theory suggests that all individuals try to satisfy the lower level needs before higher level needs emerge. Lower level of unsatisfied needs that an individual experience serves to motivate his or her behavior. When a need is satisfied, then a higher level needs emerge and again tension appears. To reduce this tension, the individual gets motivated and fulfills it. When this need is satisfied, a new need continuously new need generate हो जाती है and higher need emerge. Accordingly to this theory, however, there is some overlap between each level, as no need is over completely satisfied. For this reason, though all level of need below the dominant level continue to motivate behavior to some extent. Okay. Now, first need, psychological needs. In psychological needs, Maslow explained this is the first and most basic level of needs, which are called psychological needs. These needs are also called primary needs, which are required for sustenance, for example, food, water, air, shelter, and clothing. All biological needs. According to Maslow, psychological needs are dominant when they are chronically unsatisfied. For example, a man who is very hungry, then no other thing interests him. Then food, he dreams food, he remembers food, he perceived only food. हाँ. अब सिंपली साइकोलॉजिकल नीड्स में एक ले स्टैंडर्ड को हम लेते हैं जिसके पास जो टैम्बो लगा के रोड के किनारे आपने देखा होगा, टैम्बो वगैरह लगा के रहते हैं और जिनके पास खाने को नहीं है, सामान में उनके पास सिर्फ अगर देखें तो एक फोल्डिंग होगा और बर्तन खाने वाने के, फुटपाथ पे जो अपना सरवाइव कर रहे होते हैं, या फिर कभी को ऐसे वो होते हैं, एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे पीपल जो सिर्फ अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ फूड एंड शेल्टर, क्लोथिंग इसकी रिक्वायरमेंट। तो अब सिंपल अगर कोई बेसिक नीड्स में वो फुलफिल सुबह से शाम तक वो एफर्ट्स करता है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हाँ, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो हियर एंड देयर मूव करेगा एंड डिफरेंट एफर्ट्स जैसे कि बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। एंड उसी में अगर हम देखें किसी को, कोई अगर भूखा है, एक पर्सन जो एक बंदा भूखा है और उसको खाने की हमें उसको खाना चाहिए, तो वो खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय उसको सिर्फ खाना ही दिखेगा। उसकी नीड क्या है, उसकी बायोलॉजी जो उसकी जो फिजिकल नीड है, उसकी एक फिजिकल नीड कहें या साइकोलॉजिकल, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है। साइकोलॉजिकल नीड में उसको हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको खाना, सोते जागते उठते बैठते तो उसे खाना, हाउ टू गेट फूड, कि खाना कैसे मिल जाए, कैसे पाए, खाना खाने तक कैसे पहुंचे, एवरी टाइम एवरी मोमेंट उसको खाना ही दिखेगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आई, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स। तो बेसिक मैस्लो जी ने देखा कि मैस्लो जी ने बेसिक नीड्स को फर्स्ट लेवल में लिया, ले स्टैंडर्ड को। ठीक है, जो सिर्फ देखते हैं कि फूड एंड शेल्टर, क्लोथिंग के लिए अफोर्ड करते हैं, और वहां से हटके किसी के पास अगर फूड एंड क्लोथिंग है, शेल्टर नहीं है, तो शेल्टर के लिए, या किसी के पास फूड एंड शेल्टर भी थोड़ा बहुत है, तो वो क्लोथिंग एंड डिफरेंट मतलब बेसिक नीड्स जो है उसके लिए दौड़ भाग। ठीक है, एंड नेक्स्ट
सेफ्टी नीड्स। जब पर्सन के पास बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, आफ्टर दैट completing basic needs, after that generate safety needs. A person has more, a person has completely food, shelter, and clothing, and in future, in future they feel they satisfy, they have sufficient amount to survive in future. They have sufficient amount to survive in future. Then the condition, they feel safety needs. एक पर्सन जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट है, उसको लग रहा है कि आज तो मेरा कट जाएगा और मुझे आगे तक का मुझे कुछ नहीं सोचना है, एक इवन आगे एक पुस्त तो मेरी बैठे खाएगी। हाँ, भाई जिसके पास शेल्टर है, क्लोथिंग है, फूड है, और तो उसको सब कुछ है, और उसके पास इतना स्टॉक मनी है कि उसको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। इन द सेंस ये उसके माइंड में है कि मेरी एक पुस्त बैठे खा लेगी, इतना मैंने स्टॉक कर लिया। देन दैट कंडीशन, वो उसको एक फील आता है, वो एक फियर जनरेट होता है उसके अंदर कि अब किसी को अगर पता चल गया मेरे पास इतना पैसा है, तो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ फियर्स उसको जो है उसके माइंड में आते हैं। देन वो सेफ्टी के लिए वो अपने अमाउंट जो उसके पास लिक्विडिटी है उसको उसको इन्वेस्टमेंट में उसमें उसको इन्वेस्टमेंट 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 लगाते हैं। लाइक आफ्टर द साइकोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, safety and security need become the driving force behind an individual's behavior. They are concerned with physical safety, for example, order, stability, familiarity, routine, control over one's life and environment, uncertainty, etc. This means a person will eat lunch not only that day but also every day or into future. वो ये चाहेगा, जिसके पास सारी चीजें हैं तो वो यही चाहेगा कि हम एक दिन लंच ना करें, बल्कि हम ये हमारे पास जितना पैसा है हम ऐसी जगह लगा दें कि कोई चोर ना चोरी करने पाए, कुछ और ना होने पाए, कोई मुझे कोई पैसे को जान के मुझे मेरी लाइफ को खतरा ना हो, तो वो ऐसा वो इंश्योरेंस खरीदेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेगा एंड लैंड ले लेगा, तो वो उसको सेफ्टी नीड्स उसको उसके माइंड में आती है, जनरेट हो जाती है। And safety means not only health wise but individual needs, but other securities like need for saving accounts, insurance, and different type of. Next, जब साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स दोनों नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, देन अब इंसान के पास पैसा और फ्यूचर के बारे में सोचना भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उस समय फिर होता है कि सफिशिएंट अमाउंट जब आ जाता है, घर हमारे पास घर है, बढ़िया सेविंग है, फिर हम सोचते हैं कि अब हमारे सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई चाहिए, तो उस समय सोशल नीड्स की जरूरत पड़ती है, हमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है। हाँ, देन थर्ड लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की इंक्लूड्स सच नीड्स आर लव, अफेक्शन। जब इंसान माइंड से फ्री होता है देन वो इन्वॉल्व होता है लव, अफेक्शन, बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस। जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो एडवर्टाइजर्स ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट ऑफन emphasize all these social motives in their advertisement। ठीक है, जब दोनों चीजें पैसा भी है
और बेसिक बेसिक नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, हमें फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचने दें, हमें अब दोस्त चाहिए हमें एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, एंड अपनी बातें शेयर करने के लिए, खुश रहने के लिए। देन सोशल व्हेन कंप्लीटेड व्हेन आफ्टर कंप्लीटिंग सोशल नीड्स, रिक्वायरमेंट, सेल्फ स्टीम, इगोइस्टिक नीड्स, फिर जनरेट होती है इगोइस्टिक नीड्स। इगोइस्टिक नीड्स में क्या होता है कि पर्सन अब फ्रेंड्स के साथ में है, सब कुछ है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे अब मुझे क्या लगा, वहां पे क्या फील हो रहा है कि हमें अपने उन फ्रेंड्स से अलग दिखना है, ठीक है, हमारा भी कोई स्टेटस अचीवमेंट, हमारा कुछ मतलब काउंट हो सोसाइटी में, हम कहीं अलग काउंट हो, ठीक है। तो जब किसी के पास पैसा आता है तो सबसे पहले पैसा जब बढ़ता है तो ये एक साइकोलॉजी वो एक मेंटेन होने लगती है कि ह्यूमन नेचर होता है कि वो सोसाइटी में एक अपना सिंपल प्लेस, एक डिफरेंट प्लेस की उम्मीद करने लगता है कि मुझे लोग काउंट करें, हाँ, स्पेशल समवन में, ठीक है। तो फोर्थ लेवल है मास्लो हायरार्की नीड्स का, सेल्फ स्टीम नीड्स। हाँ, this becomes operative when the social needs of a person are more or less satisfied. Egoistic need can be inward and outward, both oriented. Egoistic need या सेल्फ स्टीम नीड, हाँ, इगोइस्टिक नीड को मैंने क्या बताया था आपको इगोइस्टिक पर्सन के बारे में कि वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बिहेवियर मेंटेन करते हैं, हाँ। तो वो एनवायरनमेंट में जब अपने दोस्तों वगैरह में रहे, उन्होंने देखा और उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली जब उन्हें उतना पॉजिटिव जिस हिसाब से उन्हें जो सेटिस्फाई नहीं हुए, सोशल नीड्स ऑफ अ पर्सन आर मोर और लेस सेटिस्फाइड, जब मोर और लेस सेटिस्फाई हुआ पर्सन तो वो वहां से इगोस्टिक नीड जनरेट हो जाती है। इगोस्टिक नीड में सेल्फ स्टीम फॉर सक्सेस, इंडिपेंडेंस, स्टेटस मेंटेन स्टेटस, reputation. Ego needs includes need for reputation, for status and recognition from others, कि मुझे कुछ जाने, मैं कुछ हूँ, मेरा स्टेटस मेंटेन होना चाहिए दोस्तों में, मैं एकदम मेरा घर मेरा फैमिली एकदम थोड़ा अलग, मेरा स्टेटस मेंटेन हो, मैं अलग दिखूं, हाँ, मुझे लोग समझे मैं रईस हूँ, मेरे पास पैसा है, ठीक है, एक रिचनेस एंड एक जेंट्री एंड बहुत सारी चीजें, हाँ, वो काउंट करते हैं कि स्टेटस, तो वो एक नीड जनरेट हो जाती है। आफ्टर देन जो लास्ट नीड है, जब वो अब स्पेशल इमेज भी पा लिया, सब कुछ है, जब पैसा किसी का बहुत पैसा वाला पर्सन आता है तो आपने देखा होगा उसके साथ किसी पार्टी में अगर कोई हाई प्रोफाइल आता है तो उसे अलग ही ट्रीटमेंट उसके साथ होता है, ठीक है। अगर मीडियम स्टैंडर्ड के यहाँ अगर कोई हाई प्रोफाइल चला जाता है तो फिर वो स्पेशल ट्रीटमेंट के वो, और यही जो मेंटेन करते हैं ये इगोस्टिक नीड्स में काउंट हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर देन जब शेल्टर भी हो गया, सेफ्टी भी प्रिपेयर, सोशल नीड्स में फ्रेंड्स वगैरह से भी फ्रेंड्स एंड लव अफेयर्स, हाँ, इन्वॉल्व हुए, एंड सोसाइटी में भी व्यवहार बनाना शुरू किया, एंड देन जब हमको तवज्जो नहीं मिला तो हमने उसको स्टेटस मेंटेन करना शुरू किया, रेपुटेशन मेंटेन की। आफ्टर देन स्टेटस एंड रेपुटेशन मेंटेन हो गया, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज आता है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज अप्रोक्सीमेटली 50 या 55 के आसपास ही आता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस स्टेज को नहीं देख पाते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस स्टेज को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द सेंस कि सेल्फ सेटिस्फाइड, जहां पे काउंट किया जाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया, हमने क्या सोसाइटी से लिया और हम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जो सेल्फ रियलाइज एक्चुअलाइज ऑफ रियलाइज ऑल वंस यूनिक पोटेंशियल, हाँ, जहां पर एक्चुअलाइजेशन ऑफ रियलाइज एक्चुअलाइजेशन की जो कंडीशन होती है एंड रियलाइजेशन की होती है कि जो रियलाइज कर रहे होते हैं एक्चुअल
कि हमारे नीड्स कहाँ, कभी हमारी नीड्स कभी खत्म होनी ही नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नीड्स कंप्लीट होती गई और हम करते रहे, ठीक है। और जब इंसान की कभी नीड्स जहाँ ओवर हो जाती है वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। हाँ, ये ऐसे बहुत वेरी फ्यू पीपल रीच दिस लेवल, एंड मोर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल बिकम मोर दे वांट टू बिकम, कि जो उन्होंने चाहा उन्होंने पाया और पाते गए। आफ्टर देन उनकी नीड्स जो है वो कभी खत्म नहीं होती। उस समय वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियलाइज करते हैं कि हमने हमने कितना पाया कितना खोया, और आज भी हम पा ही रहे हैं। तो एक वो मेच्योरिटी वाली एज होती है जो है ना, वो फिफ्थ स्टेज पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। एंड नाउ अच्छा, ये इसको मैस्लो हायरार्की नीड क्यों आ गया, क्योंकि अगर इसका हमने ये रैंक इन ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया तो ये हायरार्की नीड में नहीं काउंट होगा। हायरार्की नीड तभी है जब रैंक इन ऑर्डर सिंपली वे में होगा, लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, रैंक इन ऑर्डर अगर होगा तो ही ये हायरार्की नीड है, अदरवाइज हायरार्की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक नीड्स को फुलफिल किया मास्लो जी ने, और जब उन्होंने बताया कि जब बेसिक नीड्स फुलफिल पर्सन की तो वो सेफ्टी नीड्स की तरफ भागते हैं, सेफ्टी नीड्स जनरेट होती है। जब सेफ्टी नीड्स जनरेट होती हैं, जब वो कंप्लीट हो जाती है, इन द सेंस आज खा रहे हैं और आगे का फ्यूचर का सोचना नहीं है, इतना सेविंग कर लिया, उसके बाद वो कैश में नहीं रखे हैं, उनको कोई फियर नहीं है कि कोई भी आएगा हमारे पास से ले जाएगा, ले जाएगा, घर में कुछ है नहीं, हमारे पास से क्या ले जाएगा। और पैसा ही जान लेता है, पैसा ही लाइफ को प्रॉब्लम करता है, पैसा ही घर में सारी चीजें प्रॉब्लम करता है। तो उन्होंने उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, ठीक है, या फिर उन्होंने बैंक लॉकर्स यूज कर लिए। एंड उसके बाद जब सारी चीजें, जब पैसा भी हो गया, शेल्टर भी हो गए, और सेफ्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो वो आराम से उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया। सोसाइटी में व्यवहार, सोसाइटी फ्रेंड्स में जो है, नेबर के साथ में, एंड जो भी सोसाइटी में होते हैं मोस्टली फ्रेंड के साथ में। ठीक है, कि पर्सन एक है अपने हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में ही शेयर करना चाहेगा, या फिर लवर्स एंड विलविड के बीच में। ठीक है, एंड देन क्रिएट होती है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स स्टेटस मेंटेन, एंड जब उन्हें वो जो उन्हें चाहिए होता है एक्चुअल, वो उन्हें मोर एंड लेस, लेस और मोर वो सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेस और मोर सेटिस्फाई होते हैं उस कंडीशन में। वहां उनके जो ईगो होता है ना, ईगोइस्टिक ईगो, ईगो कहाँ से जनरेट होती है, ईगो जो है वो एनवायरमेंट से जनरेट होती है। एनवायरमेंट से पर्सन अकॉर्डिंगली वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर मेंटेन करता है। हम्म, तो फिर स्टीव नीड्स वहां पे, ठीक है, जब जब वो चीजें नहीं मिल पाई जो उनको इज्जत है, वो सोच रहे कि मैं पैसे वाला हूँ, मुझे काउंट किया गया और नहीं किया गया, तो वहां से एक ये हुआ कि मुझे पैसे वाला दिखना चाहिए, तो स्टेटस मेंटेन करना शुरू किया, रेपुटेशन की मेरी भी रेपुटेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, नेक्स्ट जब सारी चीजें मेंटेन हो गई और सब कुछ मिलने लगा जो उन्हें चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर प्लेस, स्पेशल स्पेशल जो भी बिहेवियर, सब कुछ अटेंशन, सब कुछ उन्हें मिला, तो उसके बाद जो होता है वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कंडीशन में आते हैं, कि वो कंडीशन होती है बाबा, और हमारे अगर फादर, अगर कुछ मैच्योर फादर्स होंगे, फादर होंगे जैसे 50-55 वाले, तो उनके जब बड़े हो जाते हैं बच्चे भी, और जब उन्हें लगता है कभी कि नीड्स आ रही, नीड्स एंड वांट्स तो कभी खत्म ही नहीं हुई, मैं छोड़ दिया तो सब कुछ कर लिया, आज भी हमारी नीड्स एंड वांट्स खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो फिर सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ जो होता है ना कि रिवील करते हैं,
एंड सेल्फ एक्चुअलाइज, रियलाइज करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए था और आज हम कहाँ थे और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि हमें चाहिए पर चाहिए, पर वहां पे बोला ना, नीड्स एंड वांट्स खत्म नहीं होती, एंड ऑफ द साई नीड्स एंड वांट्स नहीं खत्म होती है। ये ह्यूमन का एक नेचर होता है। ठीक है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि एक गलती करना, बहुत से लोग होते हैं गलती करते हैं, गलती गलती पे गलती करते चले जाते हैं, बट उन्हें वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो गलती करते हैं पर वो गलती को इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मुझे उससे गलती हुई, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे, मैंने उसको थप्पड़ मारा, भले उस समय वो उसको डांट ना माने, लेकिन बाद में उनकी जो एक इनर सोल होती है उन्हें कर्ज करती है और बोलती है कि नहीं, तुमने गलत किया। तो वो इनर सोल वो एक्सेप्ट करता है कि यार उससे गलती हो गई, उसको मैंने थप्पड़ मारा, मुझे नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन कम होते हैं। तो